Hello and welcome to IC Mumbai online service. नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आईसी मुंबई ऑनलाइन सभा में। We are so glad that you are able to join us tonight. और हम सच में बहुत ही खुश हैं कि आज की शाम आप हमारे साथ में जुड़ पाए। And let me tell you, you're up for an awesome time right now. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक बहुत ही अद्भुत स्तुति के लिए तैयार हैं। Now we're going to go into praise and you have to get up, dance and praise God right now. इस समय हम स्तुति करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ या फिर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी हो आपको खड़े होना है, स्तुति करना है, नाचना है और गाना है। And I'm going to invite Abhinesh to lead us into praise right now. और मैं अभिनेश को जो है न्योता देना चाहूंगा ताकि वो स्तुति में हमें अगुवाई करे। Come on, church, let's all praise him right now. Get on your feet right now. Yeah. Come on, clap. ताली बजाए सभी. I come to you with a grateful heart for the things you've done. I come to you giving all my praise for this day you've made. You're amazing, forever reigning, my God. Yeah, there's no one like you, none beside you, my God. Yeah, oh, जहाँ भी मैं जाऊँ नाम तेरा उठाऊँ, जो भी करूँ स्तुति दूँ तुझे. जहाँ भी मैं जाऊँ नाम तेरा उठाऊँ, नाम उठाए हम. 1, 2, 3 नाम उठाए हम, नाम उठाए हम, नाम उठाए हम. Praise you, Jesus. नाम उठाए हम. I come to you with a sacrifice, Lord, to lift you high. I come to you every night and day, Lord, to give you praise. You're amazing, forever reigning, my God. Yeah, there's no one like you, no one like you, none besides you, my God. जहाँ भी मैं जाऊँ नाम तेरा उठाऊँ, जो भी करूँ स्तुति दूँ तुझे. जहाँ भी मैं जाऊँ नाम तेरा उठाऊँ, नाम उठाए हम. 1, 2, 3 नाम उठाए हम, नाम उठाए हम. Yeah, नाम उठाए हम. We praise you, Jesus. नाम उठाए हम. Whatever comes my way, I will lift you up, giving you my praise. I will never stop. You're surrounding me, your love overflows. I will lift your name everywhere I go. Come on, clap. Yeah. जहाँ भी मैं जाऊँ नाम तेरा उठाऊँ, जो भी करूँ स्तुति दूँ तुझे. जहाँ भी मैं जाऊँ नाम तेरा उठाऊँ, नाम उठाए हम. जप 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 नाम उठाए हम. Yeah, नाम उठाए हम. We praise, नाम उठाए हम. Come on, lift his name. नाम उठाए हम. Whatever comes my way, I will lift you up, giving you my praise. I will never stop. You're surrounding me, your love overflows. I will lift your name everywhere I go. Yeah, we praise you, Jesus. Praise you, Lord. Come on, that was an awesome time of praise. आइए वो सच में बहुत ही अद्भुत स्तुति था And I'm sure you enjoyed praising God in your houses tonight. और मैं आशा करता हूँ कि आपने भी अपने अपने घर में स्तुति करते हुए बहुत ही मजा लिया. Now it's time to welcome our guest for tonight. और अभी ये समय है जहाँ पर हम अपने मेहमानों का स्वागत करेंगे. And if you're watching us for the first time or if you're connecting to IC Mumbai online for the first time, you are our guest.
तो अगर आप पहली बार हमारे साथ में जुड़े हो या फिर आईसी मुंबई का वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे बहुत ही खास मेहमान हो। And we want to say a big welcome from IC Mumbai family to you. तो हम आपको एक बड़ा नमस्ते कहना चाहेंगे पूरे आईसी मुंबई के परिवार की तरफ से। Thank you for connecting to us. धन्यवाद कि आप हमारे साथ में And जुड़े once हो। again, if you have joined us for the first time, why don't you click on the link mentioned in the comment section and one of our team members will contact you just to say hi. फिर एक बार क्यों ना, अगर आप पहली बार जुड़े हो हमारे साथ में तो कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दिखेगा, क्यों ना आप उस लिंक पर क्लिक करें, अपनी जानकारियों को भर दे ताकि हम में से कोई एक व्यक्ति इस सप्ताह आपके साथ में जुड़ा रहेगा। Well, Jenny, I have something more exciting coming up. और विंस्टन, मेरे पास में सच में कुछ अद्भुत चीजें आने वाली है। This week we have Connect Group. और ये सप्ताह कनेक्ट ग्रुप है। And let me tell you, Connect Group is amazing. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कनेक्ट ग्रुप जो है बहुत ही अच्छा है। And Connect Group is a place where all of us meet together in small groups all over the city and enjoy the Word of God, enjoy fellowship and food. और कनेक्ट ग्रुप ऐसी चीज है जहाँ पर पूरे मुंबई में अलग अलग छोटे छोटे झुंड में जो है हम मिलते हैं और वहाँ पर प्रभु का वचन बांटा जाता है और खाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं साथ में और फेलोशिप भी होता है। But in this season, we are meeting online and we still fellowship and we still praise God and we still know the Word of God. लेकिन इस मौसम में, लॉकडाउन के मौसम में, क्योंकि हम नहीं मिल पाते हैं शारीरिक रूप से, हम जो है ऑनलाइन मिलते हैं, हम फिर भी प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, वचन बांटते हैं और फेलोशिप करते हैं। And if you're not a part of Connect Group, why don't you click on the link and let us know, and one of our team members will put you in a Connect Group. तो अगर आप कनेक्ट ग्रुप का एक हिस्सा नहीं हो तो क्यों ना फिर एक बार आप उसी लिंक पर क्लिक कर सकते हो और हमें बता सकते हो ताकि हम में से एक व्यक्ति आपको जरूर किसी न किसी कनेक्ट ग्रुप में डालेगा। And right now it's time for tithes and offering, and I'd like to invite my dear friend Abhinesh to share something with us. और ये समय है भेंट और दशमांश का और मैं बुलाना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई अभिनेश को क्योंकि वो हमें अगुवाई करेंगे। If you want to give, look at the details on the screen right now. और अगर आप प्रभु के राज्य में बोना चाहते हो क्यों ना आप स्क्रीन पर जो डिटेल्स है उसको नोट डाउन कर लें। Now let's read from the book of Hebrews, chapter 13, verse 16. तो आइए हम लोग हिब्रू के पुस्तक में से पढ़ेंगे 13 अध्याय 16वां वचन। And do not forget to do good and to share with others. अच्छाई करना भूलना नहीं और दूसरों के साथ में बांटना, For with such sacrifices God is pleased. क्योंकि ऐसे त्याग से या फिर बलिदान से प्रभु खुश होता है। I want to apply this verse to your finances tonight. और मैं आज की शाम जो है इसी वचन को आपके आर्थिक जो परिस्थिति है उसके साथ में जोड़ना चाहूंगा। Yes, we should do good with our money. हाँ, हमको अच्छा करना है अपने पैसों को लेकर। Yes, we should wisely use our money. हाँ, हमको बहुत ही बुद्धि से जो है अपने पैसों का इस्तेमाल करना है। Just like it says in the verse, share with others. और जैसे ही इस वचन में लिखा गया है दूसरों के साथ में बांटो, Which means we should be generous with our finances. उसका मतलब ये है कि हमको अपने पैसों को लेकर दानी बनना है। But what I want to focus on tonight is about the sacrifice part in this verse. लेकिन आज की शाम वचन में से ऐसी एक बात है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान भटकाना चाहता हूँ, वो है त्याग या फिर बलिदान। There might be some of you tonight sitting at your house and thinking how things might work out this coming week and do I have enough money? शायद आप में से कुछ लोग जो है आज की शाम घर बैठे ये सोच रहे होंगे कि आने वाले सप्ताह में मेरा घर कैसा चलेगा या फिर मेरे पास में उतने पैसे हैं ताकि मैं अपना घर चला सकूं। But I want you to know and remember that God sees your sacrifices. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज ध्यान रखें या फिर याद रखें कि प्रभु आपके हर एक त्याग को और बलिदान को देखता है। And only because of your sacrifices, God is pleased. और सिर्फ आपके त्याग से या फिर आपके बलिदान से ही प्रभु जो है बहुत ही खुश है। And when He's pleased, He will pour out His favor upon you. और जब प्रभु खुश होता है वो अपना अनुग्रह जो है आपके ऊपर बरसाता है। When God is pleased, He will give you the job that you've been praying for. और जब प्रभु खुश होता है वो आपको वही नौकरी या फिर वो काम देता है जिसके इंतजार में आप थे। And when God is pleased, He will provide for all your needs. और जब प्रभु खुश होता है, संतुष्ट होता है, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। Just 2 weeks ago, I was talking to one of my family members, और बस 2 ही सप्ताह पहले मैं अपने परिवार के एक सदस्य से बात कर रहा था and he was telling me how once God just spoke to him.
और वो मुझसे ये कह रहा था कि कैसे प्रभु ने उनसे एक बार बात की थी God said to him that empty your bank account and send it to someone and bless them. और प्रभु ने उनसे ये कहा था कि आपको जो है अपना बैंक का खाता जो है उसको पूरा खाली करना है और किसी को आशीष करना है. And during this time, imagine he didn't have any work. That was the amount that was left in his account for the months that he had to survive for. और सोचिए ऐसे मौसम में जहाँ पर काम नहीं है, आमदनी नहीं है और वो ये सोच में था कि बस इतना ही पैसा है मेरे खाते में और मुझे वो इस्तेमाल करना है. But then he listened to God, he obeyed God's word, and he sent that money to that person. लेकिन फिर उसने प्रभु की बात को मानी और प्रभु के आज्ञा का पालन किया और जिस व्यक्ति को उन पैसों के द्वारा आशीष करना था उन्होंने उस व्यक्ति को आशीष किया. His bank account went empty. और फिर उनका खाता जो है पूर्ण रीति से जो है खाली हो चुका था. But then I said God was pleased by him. In next 2 weeks he got the double amount in his account. लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रभु उसके इस त्याग से या फिर बलिदान से बहुत ही खुश था क्योंकि सिर्फ 2 ही हफ्ते में उसके खाते में उनके खाते में जो है जितना उन्होंने दिया था उसका दुगना रकम जो है उनके खाते में आ गया था. So right now your offering might feel like a sacrifice to you. शायद आज की शाम आपको जो भी भेंट प्रभु को देना है वो शायद ही आपको लगता होगा कि ये एक त्याग या फिर बलिदान है. But remember, God is pleased by your sacrifice. लेकिन याद रखना प्रभु जो है आपके हर एक त्याग से या फिर बलिदान से बहुत खुश होता है. Come on, let's all close our eyes and pray right now. क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद कर ले और मैं प्रार्थना करूंगा. Lord Jesus, we come to you right now, Lord God. प्रभु यीशु हम आपके सम्मुख आते हैं इस समय We bring our sacrifices to you, Lord Jesus. और हम हमारे सारे बलिदान या फिर त्याग को आपके सम्मुख ले आते हैं. Lord, we just want you to pour out your blessings over us, Lord God. और प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपनी आशीषों को हमारे ऊपर बरसाए. And let this offering be a blessing to your house, Jesus. और ये भेंट जो है आपके राज्य के लिए आपके घर के लिए एक आशीष का कारण बने. Lord, thank you for all that you've given us. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए जो आपने हमें दिया है. And we want to thank you for your presences with us every time. और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ बनी रहती है. I pray this prayer in your mighty name, Jesus. और इस प्रार्थना को महान यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ. Amen. आमेन. Amen. Let's all get into worship right now. As you give and as you give to God, let's all worship Him. Let's all stand up and lift our hands up and worship Him. क्यों ना इस समय आप सभी लोग खड़े हो जाए ताकि हम आराधना में जाएं और आप सभी लोग अपने हाथों को उठाइए और प्रभु का आदर कीजिए. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. Here I am, Lord, vulnerable, ready for you to come and move. This is where my heart belongs. With your presence, come and consume me, Jesus. I feel wonder fill the room. You're here, I am overwhelmed. As I let go, I receive. With your presence, come and consume me. Come and consume me. तुझे चाहो, तुझे चाहो.
सबसे ज्यादा तुझे चाहूं, मैं फिर से हर बार जीऊं मैं हर दिन तुझ में यीशु, तुझे चाहूं मैं, तुझे चाहूं मैं. Feels like heaven when you hear waves of glory that cover me. Let your spirit saturate with your presence. Come and consume me. Come and consume me. तुझे चाहूं, तुझे चाहूं, मैं सबसे ज्यादा तुझे चाहूं, मैं फिर से हर बार जीऊं मैं हर दिन तुझ में यीशु, तुझे चाहूं मैं, तुझे चाहूं, मैं सबसे ज्यादा तुझे चाहूं, मैं फिर से हर बार जीऊं मैं हर दिन तुझ में यीशु, तुझे चाहूं मैं, तुझे चाहूं मैं और कुछ ना चाहूं, पुकारे दूं तुझे यीशु, मैं और कुछ ना चाहूं, मैं तेरा ही, सिर्फ तेरा ही प्रभु. मैं और कुछ ना चाहूं, पुकारे दूं तुझे यीशु, मैं और कुछ ना चाहूं, मैं तेरा ही, सिर्फ तेरा ही प्रभु. तुझे चाहूं, मैं सबसे ज्यादा तुझे चाहूं, मैं फिर से हर बार जीऊं मैं हर दिन तुझ में यीशु, तुझे चाहूं मैं, तुझे चाहूं मैं, तुझे चाहूं मैं और कुछ ना चाहूं, पुकारे दूं तुझे यीशु, मैं और कुछ ना चाहूं, मैं तेरा ही, सिर्फ तेरा ही प्रभु. मैं और कुछ ना चाहूं, पुकारे दूं तुझे यीशु, मैं और कुछ ना चाहूं, मैं तेरा ही, सिर्फ तेरा ही प्रभु. Oh Jesus, oh I'm yours Lord, I don't need anything else. प्रभु मैं और कुछ ना चाहूं तेरे सिवा. I need you Lord, I want you Jesus. Oh I
चाहूं यीशु, सिर्फ तुझे चाहूं यीशु। Lord Jesus, प्यारे यीशु, I give this time into your hand. और ये समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, Whatever I'm going to speak, Lord God, और मैं जो भी बात करने वाली हूँ let it come from you alone. और वो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आप ही से आए, And let people hear what you want them to hear. और मदद करना ताकि लोग सुन पाए जो आप कहना चाह रहे हो, And let there be revelations. और वहाँ पर एक प्रकाशन हो। In Jesus' name I pray. और यीशु के महान नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, Amen. आमेन। Hello, church. नमस्ते I कलीसिया, hope your day was going good. और मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन जो है बहुत ही अच्छा चला। Before I say the topic for my sermon, Oh. I would like to say something. और जो मैं आज प्रचार करने वाली हूँ उसका शीर्षक बोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी। Get ready because today God is going to talk to you. तैयार रहना क्योंकि आज की शाम प्रभु आपसे बात करने He वाला is है, going to reveal things to you. और प्रभु आपको जो है बहुत सारी चीजों का प्रकाशन देने वाला And है, you are going to experience the goodness of God. और आप सच में प्रभु की अच्छाई को महसूस करोगे। So let's straight get into the word. तो आइए हम लोग सीधे वचन में जाएंगे, So I want to talk about trust. और मैं विश्वास के बारे में बात करना चाहूंगी। Trust means firm belief in the ability of someone or something. विश्वास का मतलब ये है कि किसी में या फिर किसी पर एक ऐसा विश्वास रखना कि हमको पता है कि वो चीज़ होगा। And trust simply means building a relationship with someone और विश्वास का मतलब ये भी है कि हमको जो है आसानी से किसी के साथ में एक रिश्ता बना रहे हैं हम, and believing that they are reliable. और ये विश्वास करना कि उन पर हम निर्भर हो सकते हैं। But here is the thing. लेकिन यहाँ पर ये बात है, As human beings, और क्योंकि हम इंसान हैं, we struggle to trust people. हमको जो है बहुत ही मुश्किल लगता है ये बात किसी पर विश्वास करना। And because of this current trends on social media, और क्योंकि ये सब सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें हो रही है अभी, we see hashtag trust no one. और हम ये देखते हैं कि हैशटैग किसी पर विश्वास नहीं करना, Everyone just stabs at your back. और हर एक व्यक्ति जो है आपके पीठ पर छुरा भोंकता है। And particularly in this 2020, it's going to be same throughout this year. और ये 2020 ये जो साल चल रहा है, हाँ बस सब कुछ वैसा ही चलने वाला है। This sows disbelief in our heart. और ये चीज़ जो है हमारे दिल में जो है बैठ गया है, And we don't trust this world and we don't trust this people. और हम इस दुनिया पर या फिर सारे लोगों पर जो है विश्वास नहीं करते। And this disbelief slowly just starts to creep into our soul. और ये जो विश्वास नहीं करना, वो आत्मा जो है बस अपने अंदर जो है बस चलने ही लगता है, And it might end up us not believing in God too. और शायद ही ऐसा होगा आने वाले दिनों में कि हम प्रभु पर भी विश्वास करना छोड़ देंगे। And there is an easy way to check if you're trusting God or not. और ये बहुत ही आसान तरीका है जहाँ पर आप जांच सकते हो कि आप प्रभु पर विश्वास करते हो या नहीं। If you're finding yourself saying these things, that means you don't trust God. अगर आप ये देखते हो अपने आप को इस स्थिति में पाते हो कि मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि आप विश्वास नहीं करते हो। Can't God see these people what they are doing to me? क्या ये लोग देख नहीं पा रहे कि प्रभु मेरे साथ में क्या कर रहा है? God, it's always the same with me. Why can't anything good happen to me? प्रभु मेरे साथ में हमेशा ऐसा ही होता है, क्यों अच्छी चीजें मेरे साथ नहीं हो सकती है? Why it's only me, God? क्यों हमेशा मैं प्रभु, And all the time only this thing happens to me. और हर बार मेरे साथ में ही ये चीज होती है? It's better not to believe in God. और इससे तो अच्छा है कि मैं प्रभु पर विश्वास ही नहीं करूं। But you know what? लेकिन क्या आपको पता है, We need to trust God. हमको जो है प्रभु पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी I'm है। not saying it by myself. और मैं ये अपने आप में ही नहीं कह रही हूँ, It is written in the word. ये वचन में भी लिखा है। If you read Jeremiah chapter 17 verse 7, अगर आप इर्मिया का किताब पढ़ते हो 17 अध्याय 7वां वचन, the verse says, और वचन ये कहता है, "But blessed are those who trust in the Lord लेकिन वही लोग आशीषित होते हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं and have made the Lord their hope and confidence." और जिन्होंने प्रभु को जो है अपनी आशा और आत्मविश्वास बनाया है। So today
तो आज की शाम I'm going to preach about मैं इस बारे में प्रचार करने वाली हूँ, why do you need to trust God. आपको क्यों प्रभु पर विश्वास करना है। And I'm going to give you 3 reasons to trust God. और मैं आपको 3 ऐसे कारण बताऊंगी कि क्यों आपको प्रभु पर विश्वास करना है। Point number 1. सबसे पहला मुद्दा, First reason is God is omniscient. और- That is all knowing. सबसे पहला मुद्दा, प्रभु जो है सर्वज्ञान है। उसका मतलब यह है कि प्रभु सब कुछ जानता है। In Jeremiah chapter 29 verse 11. और इर्मिया का किताब 29 अध्याय 11 वचन ये कहता है, For I know the plans I have for you, क्योंकि says मैं- the Lord. क्योंकि मैं जानता हूँ वो सारी योजनाओं को जो मैंने लिखा है आपके लिए, आपके जीवन में। They are plans for good और ये योजनाएं अच्छाई के लिए है, and not for disaster, ना कि बर्बादी के लिए, to give you a future and a hope. ताकि आपको एक अच्छा भविष्य मिले और आशा मिले। Church, कलीसिया, more than you, God knows exactly what you need. आपसे भी ज्यादा प्रभु अच्छे से जानता है कि आपको किन चीजों की जरूरत है। And when it comes to trusting God, और जब प्रभु पर विश्वास करने की बात आती है, you might question God. God, do you know how I feel? शायद आप प्रभु को सवाल करते हो कि प्रभु क्या आप जानते हो मुझे कैसा लगता है या फिर कैसा महसूस होता है। God, do you know what I'm exactly going through? क्या प्रभु आप सच में जानते हो कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। God, do you even know how bad this is getting? प्रभु क्या आप सच में जानते हो कि ये कितना बुरा होता जा रहा है। And when all these things come in your mind, और जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, remember that God is all knowing. याद रखना कि प्रभु सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी है। And why to trust His plans? और क्यों उसकी योजना पे विश्वास करना है। Of course, He has a plan for good future and a hope. हाँ, उसके पास में योजना है कि अब हमको एक अच्छा भविष्य दे और आशा दे। But there is one more strong reason. लेकिन वहाँ पर और एक बहुत ही एक अच्छा कारण है। In Jeremiah chapter 1:5 it says, और इर्मिया का किताब 1 अध्याय 5वां वचन ये कहता I कहता knew है, you before I formed you in your mother's womb. और तुम्हारे माँ के गर्भ में मैंने तुम्हें डालने से पहले से ही मैं तुम्हें जानता हूँ। Before you were born, और तुम पैदा होने से पहले ही I set you apart मैंने तुमको अलग चुना है and appointed you as my prophet to the nations. और मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरा भविष्यद्वक्ता बनो। So church, see clearly, even before you were born, God knows you. कलीसिया, यहाँ पर साफ रीति में या फिर साफ शब्दों में लिखा है कि प्रभु आप पैदा होने से पहले या फिर आप अपने माँ के गर्भ में आने से पहले से ही जानता है। So when you think nobody knows, तो जब आप ये सोचते हो कि हाँ कोई नहीं जानता है, know that God for surely knows. आप ये जान लीजिए कि प्रभु आपको जरूर जानता है। And the second reason to trust God, और दूसरा जो कारण है आपको क्यों विश्वास करना है प्रभु पर, God is omnipotent, that is all powerful. और प्रभु जो है सर्वशक्तिमान है। उसका मतलब यह है कि उसमें सारा सामर्थ्य है। Most of us know that. और हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं। And we also know that God spoke everything into existence. और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु ने हर एक चीज को बोला है और बोल कर रचा है, Which is pretty amazing and unimaginable. और ये बहुत ही अद्भुत है और ये शायद हम सोच भी नहीं पाते कभी कभी। But yes, He did it. लेकिन हाँ, प्रभु ने किया है। It's good that we know that He knows. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम जानते हैं कि वो जानता है। You might have used phrases like these. और शायद ही आपने ऐसी वाक्य का इस्तेमाल किया होगा, You know what? God knows. क्या आपको पता है कि प्रभु जानता है God is in control. और प्रभु जो है हर एक चीज को अपने ताबे में ले चुके हैं God can do better. और प्रभु अच्छा कर सकता है। But still you might struggle in your heart to trust that He will do it. लेकिन फिर भी शायद ही आप अपने हृदय में बहुत आपको हिचकिचाहट होती है या फिर मुश्किल होता है ये चीज जानने में कि आप विश्वास करते हो। And to prove it, I found an amazing verse in Bible. और यह आपको बताने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा वचन जाना है बाइबल में से। But before talking about that verse, I need to give you some facts. लेकिन वो वचन को बोलने से पहले मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहूंगी। We all know God created universe, हम सभी जानते हैं कि प्रभु ने इस सृष्टि को रचा है, but this is some astronomy time. लेकिन ये जो है अभी एक खगोल का समय है। We live in the Milky Way galaxy. Our planet is in the Milky Way galaxy. और हम जो पृथ्वी पर रहते हैं वो जो है एक आकाश गंगा में है, And our solar system is just a tiny, very tiny part of it. और हमारा सोलर सिस्टम जो है वो बहुत ही एक छोटा सा भाग है।
Our galaxy alone contains more than 100 billion stars. और हमारा आकाश गंगा सिर्फ उसी में ही बहुत सारे तारे हैं. It's like 100 billion stars. यहाँ पर मानो कि अरब जो बोलते हैं जो संख्या है उतने उससे भी ज्यादा है. And I don't know what is 100 billion, Jenny, to be honest. और मैं सच में नहीं जानती हूँ प्रिया कि 100 अरब मतलब कितना I होता looked है. it up on Google. और मैंने गूगल पर देखा It is 1 with 24 zeros. और वो एक है, एक के साथ में 24 शून्य हैं. Now let's talk about these galaxies. तो आइए हम बात करेंगे इस आकाश गंगा के बारे में. There are 2 trillion galaxies in the universe. और वहाँ पर 2 करब आकाश गंगा है. And this is only known to the researchers. और ये सिर्फ जो रिसर्चर्स है यानी कि ये सारी बातों का जो खोज करते हैं सिर्फ उन्हें ही पता है. But there is something also known as unknown universe, which means there is more and more. लेकिन वहाँ पर ऐसी भी कोई बातें हैं, ऐसी सृष्टि है जिसको हम नहीं जानते हैं, मतलब उससे भी ज्यादा है बढ़कर. To be honest, the number of stars are out of our imagination. तो अगर मैं सच कहूँ तो जितनी जो संख्या होती है तारों की वो हम सोच भी नहीं सकते या फिर गिन भी नहीं सकते. Now you might be thinking, why is she talking about this when she's talking about the power of God? और शायद अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये इन सब चीजों के बारे में क्यों बात करी जब प्रभु के सामर्थ के बारे में बातचीत हो रही है. There is a verse in Psalms chapter 33, verse 6. और भजन संहिता में जो है एक वचन है 33 अध्याय 6 वचन. The Lord merely spoke, और प्रभु ने बस बोला ही था and the heavens were created. और आकाश जो है रच गया था. He breathed the word, और उसने जो है वचन को जो है फूका and all the stars were born. और सारे तारों का जन्म हुआ. You see, he didn't even speak. आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर प्रभु ने जो है बस बोलना खत्म भी नहीं किया He था. just merely spoke. उसने बस बोलना शुरुआत ही किया था. You know what merely speaking is? क्या आपको पता है बस बोलना शुरुआत ही करना उसका When मतलब क्या somebody होता is है? blabbering in your ears, जब कोई आपके कान में बस फुसफुसाता है and you'll be like, और आप बस ऐसे बोलते हो that is merely speaking. और उसे ही कहा जाता है कि बस बोल ही रहे थे. And all these crazy heavens were created. और आप यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अजीब और अद्भुत चीजें जो है पूरे सृष्टि में रच गई. And he just breathed the word. और उसने जो है वचन को सिर्फ फूका. And he didn't even say, he just breathed it. और उसने बोला ही नहीं, सिर्फ फूका. And this crazy number of stars were born. और यहाँ पर जो है इतनी संख्या में जो है तारों का जन्म हुआ. In no time, बस कुछ समय भी नहीं लगा. people spent their lives researching about these stars. और लोग जो है अपने पूरा जीवन बिता देते हैं इन सारी चीजों की खोज में. But what has this got to do with trusting God? लेकिन ये सब चीजों का मतलब क्या जब हम प्रभु पर विश्वास करने की बात कर रहे हैं. And you might ask God a question. God, how can you do this, God? I can't believe it's going to happen. और आप शायद प्रभु को ये सवाल करते हो कि प्रभु आप ये कैसे कर सकते हो, आप नहीं जानते हो. If that happens to you, और जब ये सारी चीजें आपके साथ में होती है, remember about these amazing things God created with just His words. ये सारी चीजों को याद करना, ये सारी अद्भुत चीज है जो प्रभु ने रचाई है सिर्फ बोलकर. And how people spend their lives studying it and yet not complete it. और कैसे लोग जो है अपना पूरा जीवन बिताते हैं इसकी खोज में लेकिन फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाते. Every time they think it's the end, there is a new beginning. और हर बार वो लोग सोचते हैं कि हाँ बस अंत हुआ, लेकिन वहाँ पर जो है कोई नए बात की शुरुआत होती है. And this powerful God, और यही सामर्थी प्रभु, in Genesis 1:27 it says, और हम लोग देखते हैं उत्पत्ति का किताब 1 और 27 वचन में, He created us in His own image. प्रभु ने जो है हमको उसके ही स्वरूप में बनाया. All these things just came out of His mouth and we are still wondering how it happened. और ये सारी चीजें बस उसके मुंह से या फिर उसके शब्द से हुआ और हम सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे हुआ ये He's सब. so powerful. और वो इतना सामर्थी है. Imagine He made us with His hands. सोचिए कि उसने हमको अपने हाथों से रचा He chose us even before we were born. और उसने हम पैदा होने से पहले से ही हमें चुना है. And above that, He created us in His own image. और इन सभी से ऊपर उसने हमको अपने स्वरूप में रचा है. Then how well would He plan our future? तो सोचिए कि वो अपने भविष्य के बारे में कितने अच्छे से उसका योजना किया होगा या फिर कितना सोचता है. So church, why to trust God?
तो कलीसिया क्यों प्रभु पर विश्वास करना है? Because he is omniscient, all knowing, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, and because he is omnipresent, because he is omnipotent, he is all powerful. और क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो बहुत ही सामर्थी है। And the last reason, और सबसे आखिरी कारण, God is omnipresent, he is everywhere. और प्रभु जो है सर्वभूत है। उसका मतलब यह है कि प्रभु हर एक जगह पर उपस्थित है। Now that we know that he knows और अभी क्यों हम ये जानते हैं कि वो जानता है and he does, और वो करता है, but how do we trust that he is everywhere with us? लेकिन हम ये कैसे विश्वास करें कि वो हर एक जगह पर उपस्थित है? I mean, in our every situation, मेरा मतलब ये है कि हर एक परिस्थिति में you might have a testimony in your life आपके जीवन में शायद एक गवाही है that God gave you a word because he knows, कि प्रभु ने आपको एक वचन दिया क्योंकि वो जानता है, and he fulfilled the word because he does. और उसने उस वचन को जो है पूरा कर दिया क्योंकि वो करता है। But right now in this situation, I don't feel him. Is he there? लेकिन इस समय में या फिर इस मौसम में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वहां पर है। And you might think of yourself like the Job in the Bible, और शायद आप अपने आप के बारे में ऐसा सोच रहे हो जैसे बाइबल में योब है like, God, I'm searching for you, but I can't find you. कि हाँ प्रभु मैं आपको खोज रहा हूँ लेकिन मैं आपको पा नहीं सकता हूँ। This point is to say that God is everywhere. और ये वचन या फिर ये मुद्दा मैं इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि प्रभु जो है हर जगह पर उपस्थित है। That means he is with me at this very moment and with you in this very moment. उसका मतलब यह है कि प्रभु इस समय पर मेरे साथ में है और आपके साथ में भी है, Because he can. क्योंकि वो ये कर सकता है, Because he is not bound by time and place. क्योंकि उसको जो है कोई समय का सीमित या फिर कोई जगह का सीमित नहीं है। So there is no question of him leaving you alone. तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है कि प्रभु आपको कभी छोड़ सकता है। If you feel like he's not present with you, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु आपके साथ में उपस्थित नहीं there है, is a verse in Joshua chapter 1 verse 9. और हम यहोशुआ में देखेंगे पहला अध्याय 9वां वचन, This is my command. और ये जो है मेरा कमांड है, मेरा आदेश है, Be strong and courageous. और आप सामर्थी रहो और करेजियस रहो, Do not be afraid or discouraged. डरो मत या फिर निराश मत होना, For the Lord your God is with you wherever you go. क्योंकि प्रभु आपके साथ में है, आप जहाँ कहीं पर भी जाते हो। And why will he go with you wherever? और प्रभु आपके साथ में क्यों जाएगा जहाँ कहीं पर भी आप जाते हो? In the deep waters, आप शायद पानी में घोर तराई में जा सकते हो, in the shadow of valley of death, और जहाँ पर घोर तराई में आप जाते हो वहाँ पर, or many more wherevers. या फिर आप जहाँ कहीं पर भी, मैं जिस भी किसी के बारे में बात करूं, There is one sole reason. और एक ऐसा कारण है, He said it उसने कहा ये चीज in को, Deuteronomy 31:8. और हम देखेंगे व्यवस्था विवरण में 31:8. और 31 अध्याय 8वां वचन, The Lord himself goes before you प्रभु खुद ही आपसे पहले जाता है and will be with you. और वो आपके साथ में रहता है, He will never leave you वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं nor forsake you. और ना ही त्यागेगा, Do not be afraid. और डरिए नहीं Do not be discouraged. और बिल्कुल निराश नहीं He होना। says that he's not going to leave you and forsake you. वो ये कहता है कि वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं और ना ही त्यागेगा। If you're not feeling the physical presence at this moment, तो अगर आप शारीरिक रूप में जो है उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हो, don't think that he's left you. तो ये नहीं सोचना कि उसने आपको छोड़ दिया है, Maybe there is something ahead on your way that is there to just trap you and kill you. या ऐसा हो सकता है कि शायद आप जहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो, आपके आगे ऐसी कोई चीज है जो आपको जकड़ना चाहता है या फिर रोकना चाहता है, Maybe he has gone before you and making the way right. और शायद वो आपके पहले गया है और वहां पर चीजों को जो है सही करना चाह रहा है। So even if you don't feel him, just acknowledge that he is still with you. यदि आप उसको महसूस नहीं भी कर पा रहे हो, ये जान लीजिए कि प्रभु आपके साथ में हमेशा है। And I'm going to share a short testimony about how God was present, he knows and he does. और मैं एक छोटी सी गवाही जो है आपके साथ में बांटना चाहूंगी कि कैसे प्रभु उपस्थित है और कैसे प्रभु कार्य करता है। I wanted to become a space research scientist. You और might laugh, but it's true.
और मुझे जो है एक स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट बनना था। शायद आप हंसोगे, लेकिन हाँ, वो सच है। Okay, my family and friends know this. और मेरे परिवार और मेरे दोस्त जो है वो जानते हैं। What I'm about to share, my family doesn't know. When they find out, maybe they'll come on me, but it's fine. मैं अभी जो बोलने वाली हूँ वो मेरा परिवार नहीं जानता है, लेकिन अगर वो जानेंगे तो शायद वो गुस्सा हो जाएंगे। I was so much interested in astronomy and space studies और मुझे सच में ये एस्ट्रोनॉमी में इतना खगोल ये जो होता है इसमें इतना इंटरेस्ट था that I took up BSc, कि मैंने साइंस जो होता है, बीएससी जो होता है, वो लिया था। and I was interested in studying physics, और फिर मैं फिजिक्स पढ़ाई करना चाह रही थी। and I also joined an astronomy course, और फिर जो है मैंने एस्ट्रोनॉमी कोर्स भी किया। all set to become a future scientist. और मैं एकदम तैयार थी कि भविष्य में मैं जो है साइंटिस्ट बनूं। And at that time, IC Mumbai was not there. और उस समय में आईसी मुंबई नहीं था। I mean, we had not had a church. ये बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पर कलीसिया नहीं थी। And at that time, I went to my chapel, and every single day I read Bible. और तब ऐसा हुआ कि मैं अपने कॉलेज में चैपल में जाती थी जहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं, और हर बार जो है मैं बाइबल पढ़ती थी। And this one fine day, I came across this chapter in Bible, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ये एक वचन पढ़ा मैंने, and it was from Ecclesiastes chapter 3. और ये जो है सबोपदेशक से था, 3रा अध्याय, You can read it at home. और वो आप घर पे पढ़ सकते हो। There was this one particular verse. और वहाँ पर एक ऐसा वचन था, I don't remember the verse, but I still remember the meaning, what God spoke to me. मुझे वचन याद नहीं है, लेकिन फिर मुझे अभी भी याद है कि उसका मतलब क्या था, या फिर प्रभु ने मुझसे क्या बात करना चाहा। This said, human beings find something new, और वहाँ पर ये लिखा गया था कि लोग जो है हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं, and they think that it is the first time they are seeing it. और उनको ऐसा लगता है कि ये पहली बार वो देख रहे हैं। But this has already existed before. लेकिन ये जो है पहले से ही था, But with time, people forgot about it. लेकिन समय के साथ में लोग भूल जाते हैं। And they find the old thing and they say that this is new. और वो लोग जो है पुरानी चीज जो है जानते हैं, और वो ये बोलते हैं कि हाँ, ये नई चीज है। And God straight away told me. और प्रभु ने सीधे मुंह मुझसे बात की। And I'm not telling you to leave up your career, but this is what God told me. और मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपना करियर छोड़ना है, लेकिन प्रभु ने मुझसे ये बात की। He said, what are you going to search on those universe and stars? और प्रभु ने मुझसे ये बोला कि ये सृष्टि में या फिर इन तारों में आप क्या खोजना चाहती हो, Just leave this and take up arts. और ये सब छोड़ दो और आर्ट्स लो। And that was the hardest decision. और ये जो है बहुत ही मुश्किल डिसीजन था, निर्णय था मेरे लिए। Because I'm going to say the truth, most of the science students have this pride that they belong to the science stream. और मैं आपको बस बोलना ही चाहूँगी ये बात कि बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गर्व होता है कि हाँ, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। And leaving up science and going to arts was a big thing. और साइंस को छोड़कर आर्ट्स में जाना बहुत ही बड़ी बात थी। But I can only give my family one reason, that I can't study. और मैं अपने परिवार वालों को सिर्फ एक ही कारण बोल सकती हूँ कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, But that was not true. लेकिन वो सच नहीं था। And this is what I did, Jenny. और मैंने ये किया प्रिया। After first semester, I stopped attending my lectures so that I purposely fail in exams. और पहले सेमेस्टर के बाद में मैं कॉलेज जाना मैंने बंद कर दिया ताकि मैं जबरदस्ती फेल हो जाऊँ। And I stopped giving my exams and internals. और फिर मैंने अपना एग्जाम्स और अपना इंटरनल्स जो है, परीक्षा जो है, वो भी देना बंद कर दिया। And finally, I failed successfully. और आखिरकार मैं फेल हो गई। And I took that to my dad and I said, see, I can't do science. Let me take arts. और वही चीज़ जो है मैं अपने पापा के पास लेकर गई और मैंने ये कहा कि देखो, मैं फेल हो गई और मैं साइंस नहीं कर सकती। This was only on that one verse that God revealed to me. और ये सब सिर्फ वो एक वचन पर हुआ जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया था। I didn't know what was coming ahead. और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है या फिर क्या आने वाला है मेरी तरफ। Then IC Mumbai happened. और फिर आईसी मुंबई हुआ मेरे जीवन And I में, joined the church. और मैं कलीसिया में आई, And God gave me the word और प्रभु ने मुझे वो वचन दिया that you will be serving कि आप जो है प्रभु की सेवकाई and करोगी, you will do great ministry of God. और तुम प्रभु की अद्भुत सेवकाई करोगी। And I didn't believe it. और फिर मैंने विश्वास नहीं किया, But because of that one step, और क्योंकि मैंने वो एक कदम लिया I got more time to serve in ministry. तो मुझे ज्यादा समय मिला ताकि मैं प्रभु की सेवकाई में अपना ध्यान दे सकूं। And there came this last year of my study. और वहाँ पर मेरा आखिरी जो साल था पढ़ाई का, I wanted to take history or English literature मुझे इतिहास या फिर अंग्रेजी लेना था। to become a teacher.
एक टीचर बनने I के लिए, changed my mindset. और क्योंकि मैंने अपना सोच जो है बदल लिया था, But God said, take philosophy. और प्रभु ने मुझसे ये कहा कि फिलॉसफी ले ले, And I'm like, how do I do that, God? और फिर मैंने प्रभु से ये कहा कि प्रभु मैं कैसे करूँ ये But He चीज, did it. लेकिन उसने कर दिखाया. Philosophy was this crazy stream where you attend or don't attend. Like our faculty was like that. They didn't care much. तो फिलॉसफी एक ऐसा चीज था कि जहाँ पर आप जाओ या ना जाओ मायने नहीं रखता है, यानी कि वहाँ पर जो शिक्षक थे वो वैसे थे, Like they were very good with timings. क्योंकि वो लोग जो है समय को लेकर बहुत ही अच्छे थे. And I got more time to serve in ministry. तो मुझे ज्यादा समय मिला ताकि मैं सेवकाई में अपना हाथ बटा सकूं या फिर ध्यान दे सकूं, And I grew in ministry and I am what I am today. और फिर मैं सेवकाई में आगे बढ़ी और आज मैं वो हूँ जो मुझे बनना चाहिए था. So church, He knew before. That's why He told me to leave. तो कलीसिया वो पहले से ही जानता था और इसीलिए उसने मुझे वो सारी चीजें छोड़ने को कहा, And He did it because He can do it. और उसने कर दिखाया क्योंकि वो कर सकता है. Now I am living independently already. और अभी मैं अकेले, मतलब मैं अलग से रहती हूँ, And I don't know what's ahead again. और मुझे नहीं पता कि आगे और क्या है, But I know this one thing. लेकिन मुझे ये एक चीज पता है, He is everywhere. और वो हर जगह पर है, He is with me in my walk. और वो मैं जहाँ जहाँ चलती हूँ वो मेरे साथ है. So church, तो कलीसिया, I finished my testimony here. और यहाँ पर मैंने अपनी गवाही को खत्म किया. Why do you need to trust God? आपको क्यों प्रभु पर विश्वास करना है? Because He is omniscient, all-knowing. क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, Because He is omnipotent. He is all-powerful. और क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसमें बहुत सामर्थ है, And He is omnipresent. That means He is everywhere. और वो सर्वभूत है. उसका मतलब यह है कि वो हर जगह पे उपस्थित है. Let me tell you this thing. और मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी, He knew, that's why He created वो जानता था इसीलिए उसने सब कुछ रचा. this amazing universe. He just created it because He knew. और ये एक अद्भुत सृष्टि, क्योंकि वो जानता था, He knew that we are going to fall into sin. वो जानता था कि हम जो है पाप में गिरने वाले हैं. But it was our choice. लेकिन ये अपना एक निर्णय था, He knew, but it was time to do something. और वो जानता था कि हाँ कुछ करना है अभी. So He came down on earth in the form of Jesus, and He did. और वो यीशु के रूप में जो है इस पृथ्वी पर आया और उसने कर दिखाया. To show that how much He loves us, He gave His life on the cross. ये दिखाने के लिए कि वो सच में कितना हमसे प्रेम करता है, और उसने उस क्रूस पर अपनी बलि दी. Because He knew that He loved us, that's why He did that, and He gave His life for us. और क्योंकि वो जानता है कि वो हमसे प्रेम करता है, और इसीलिए वो उस क्रूस पर अपनी बलि दे पाया. Not only that, after resurrection, और उतना ही नहीं, लेकिन पुनरुत्थान के दिन जब वो तीसरे दिन जी उठा, He left Holy Spirit for us. और अपने लिए जो अपने पवित्र आत्मा को छोड़ गया, Because He is there. क्योंकि वो है, He is there with us. वो हमारे साथ में है, Everywhere we go, जहाँ पर भी हम जाते in हैं, the darkest of our time, और अपने बहुत ही अंधकार समय में He भी is there with us. वो हमेशा अपने साथ में So है. never stop trusting God. तो कभी पर उस पर विश्वास करने से मुकरना नहीं. So church, कलीसिया, if you want to know this God, अगर आप जानना चाहते हो कि ये प्रभु कौन है, this is particularly for those who are watching this video for the first time, और ये खास करके उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, and you want to know this amazing God और अगर आप जानना चाहते हो कि ये अद्भुत प्रभु कौन who है, is Jesus, जो यीशु है, and also for the people who knew Jesus before and just for some reason they stopped being in relationship with Jesus. और उन लोगों के लिए भी जो पहले से यीशु को जानते हैं, इस प्रभु को जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक रिश्ता बनाना जो है छोड़ दिया. Because in this season we are seeing many distractions, क्योंकि इस मौसम में हम देखते हैं कि बहुत सारी अड़चने हैं, and you might feel like you're away from Jesus. और शायद आपको ये लग रहा है कि आप यीशु से दूर हो चुके You हो. can recommit at this time, आप जो है फिर एक बार यीशु के निकट आ सकते हो, and you have to repeat this prayer after me, और आपको जो है इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलना है. and this amazing God will have a relationship with you. और ये अद्भुत प्रभु जो है उसका रिश्ता आपके साथ में बना रहेगा, He already knows about you. और वो पहले से ही आपके बारे में जानता है. He will do things for you, वो आपके लिए चीजों को करेगा, and He'll never leave you. और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. Let's all close our eyes and तो pray. क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें. Dear Jesus, प्यारे यीशु, I just thank you, Lord,
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। Lord, I give myself to you. प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। Lord, I ask forgiveness for all the sins that I've ever committed. प्रभु, मैंने जितने भी पाप किए आज तक, हर एक पापों की माफी मांगती हूँ। Wash me clean, Lord Jesus, मुझे साफ धोना and forgive my sins, और मेरे पापों को माफ करना, and accept me as your child, और मुझे अपने बच्चे के रूप में जो है स्वीकारना, and take me in your family. और मुझे अपने परिवार में लेना। Today, आज I choose मैं निर्णय करती हूँ to leave the world behind अब इस दुनिया को पीछे छोड़कर, and only to follow you, Jesus. ताकि मैं सिर्फ आपके पीछे चलूं यीशु। In Jesus' name I pray. और यीशु नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। Amen. आमेन। If you have prayed that prayer, और अगर आपने उस प्रार्थना को कहा, congratulations. आपको कंग्रेचुलेशंस। You are a part of God's family, और आप प्रभु के एक परिवार का हिस्सा हो, but you are a special guest too, लेकिन आप एक खास मेहमान भी हो, because you are stepping into a new season. क्योंकि आप एक नए मौसम में जो है अपना कदम बढ़ा रहे हो, Since you joined hands with Jesus. और क्योंकि आप अपने हाथ को जो है प्रभु के साथ में जोड़ रहे हो। If you are that person, और अगर आप वो व्यक्ति हो, in the comment section you'll see a link. कमेंट सेक्शन में जो है आप एक लिंक को देखोगे, Click on that link उस लिंक पर क्लिक करना and say yes, और हाँ कहना, because you said yes to Jesus. क्योंकि आपने हाँ कहा यीशु And को। our volunteers will connect with you during the week. और हमारे वॉलंटियर्स जो है आपके साथ में जुड़े रहेंगे इस सप्ताह के बीच में। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। Come on, that was an awesome service. और सच में वो बहुत ही अच्छी सभा थी। And let me tell you, this word that Priya preached was so powerful. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिया ने जो ये वचन बांटा हमारे साथ में, वो बहुत ही सामर्थी था। Why do you need to trust God? Because He's omnipotent, omnipresent, omniscient, right? और आपको क्यों प्रभु पर विश्वास करना है? क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वभूत है। I'm sure it blessed your soul. और मैं आशा करता हूँ कि इस वचन ने जो है आपकी आत्मा को भी आशीष किया। Now, let me tell you again, this week we have Connect Group, so don't forget that. और फिर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा या फिर बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह जो है कनेक्ट ग्रुप है। So please, if you're not a part of Connect Group, click on the link and let us know, and we'll make sure that you're in a Connect Group. कृपया करके अगर आप कनेक्ट ग्रुप का एक हिस्सा नहीं हो तो क्यों ना आप उस लिंक पर क्लिक करें और हमें जानकारी दें ताकि हम आपको एक कनेक्ट ग्रुप का हिस्सा बना And सकें। once again, we'll see you next week at 6 p.m. on Sunday on YouTube Live. Take care and God bless you. फिर एक बार हम मिलेंगे अगले सप्ताह रविवार के दिन शाम को 6 बजे लाइव यूट्यूब पर। आप अपना ख्याल रखना।